So, the message that we are looking at in the month of March is based on sacrifice. और जो इस मार्च के महीने में जिस शीर्षक के ऊपर हम बातें कर रहे हैं वो है क्रूस। A few weeks back, the leadership team decided that it was going to base all the messages in the coming months on specific topics. और कुछ समय पहले हमारी जो अगुओं की जो टीम है, हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम हर एक महीने का एक शीर्षक रखेंगे और उसी पे हम प्रचार किया करेंगे। March is about sacrifice. और जो मार्च का महीना है वो बलिदान के ऊपर केंद्रित होगा। And all the topics for the upcoming months right up to December are already outlined. और सारे महीने जो दिसंबर तक है सबका शीर्षक पहले से तय हो चुका है। And if you look at your calendars, March 31st is Easter. और अगर आप अपने कैलेंडर को देखेंगे तो 31 मार्च जो है वो हम ईस्टर सेलिब्रेट करते हैं। And of course, 2 days before that is Good Friday. और 2 दिन पहले उससे हम गुड फ्राइडे को हम मनाते हैं। And some of us will also realize that 24th March would be Palm Sunday. और हमने ये बात भी देखा है कि 24 मार्च जो होगा वो पाम संडे करके So हम लोग exactly a week from now is Palm Sunday. इसलिए एक हफ्ते बाद हम लोग पाम संडे को हम लोग मनाने वाले हैं। So I'm thinking in my mind, if I'm talking about sacrifice and all the way leading to Good Friday and Easter, what should I be speaking on today? इसलिए मैं सोचने लगा कि अगर हम लोग क्रूस के शीर्षक के ऊपर बात कर रहे हैं और ये हमारा गुड फ्राइडे का महीना आने वाला है, तो आज मुझे किस शीर्षक पे प्रचार करना चाहिए। And if you've never thought about this and if it's not on the tip of your tongues, hear this today. और अगर आपने इस बारे में सोचा नहीं है, अगर इस बारे में आपका ध्यान नहीं था, तो आप सुने इस बात को। That the entire Christian faith is based on one thing. और जो पूरा हमारा मसीह विश्वास है वो सिर्फ एक चीज पर निर्भर होता है। That is to say that if this one thing didn't happen, we all would still be lost. और आप इस प्रकार से बोल सकते हैं कि अगर ये एक चीज नहीं होती तो हम लोग अभी भी खोए हुए होते। And that is the sacrifice of Jesus Christ and the shedding of blood and the resurrection of Jesus Christ. और वो ये बात है कि परमेश्वर का दुख उठाना और क्रूस तक उस मृत्यु को सहना। If that blood was not shed, you and I would not have meaning in our lives today in this church. अगर यीशु का लहू नहीं बहता तो हमारे जीवन में एक अर्थ नहीं होता। Because Jesus paid the price of our sins once and for all. और क्योंकि यीशु ने हमारे उस पापों का एक जो कीमत है उसको एक ही बार में चुका दी। So what does sacrifice really mean? So त्याग या बलिदान का अर्थ क्या होता है? We may be compelled while we are sitting in church to think about sacrifice. It means either emptying our pockets in church or the sacrifice of Jesus. हम कलीसिया में बैठ के सोच सकते हैं कि हमारा त्याग करने का या बलिदान करने का मतलब क्या, हम अपनी जेबों को खाली कर दें या फिर उस यीशु के इस बलिदान को हम देखें। But sacrifice is really a very simple word. लेकिन जो बलिदान है वो बहुत एक सिंपल, एक साधारण सा एक शब्द है। It is putting off today what would benefit us tomorrow. और ये एक ऐसा बलिदान है जो हम आज करते हैं ताकि हमारा भविष्य सुधर जाए। Have you thought of that? आपने इस बारे में सोचा है? That you do something today or you do not do something today so you can benefit tomorrow. आप ऐसा कुछ आज कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं आज, ताकि आपका भविष्य, आपका कल सुधर जाए। Anyway, so I was reading through the Bible और मैं अपने वचन को पढ़ रहा था and I'm thinking, what would Jesus be doing to the weeks leading to the Palm Sunday and then on to his death and Easter. और मैं ऐसा सोचने लगा कि यीशु इन दिनों में जो दिन उस दिन की ओर ले जाते हैं जब उसको क्रूस उठाने, दुख उठाने वाला है, उससे पहले वाले हफ्ते में यीशु क्या कर रहा होगा। And I had a lot of time to think about it because when I wrote this manuscript, I was on a 17-hour flight to the US. और मुझे बहुत समय मिला सोचने के लिए इस बारे में, क्योंकि मैं 17 घंटे की फ्लाइट में मैं उड़ रहा था और मैं अमेरिका जा रहा था। And I knew that the Lord was leading me, that the message would come when I sit on the flight and I had time to write it out. और मैं इस बात को समझ चुका था कि परमेश्वर मुझे अगुवाई कर रहा है कि जब मैं इस फ्लाइट में बैठूं तो परमेश्वर उस वचन को, उस प्रकाशन को मुझे दे। So if you look in your Bibles, और जब आपने वचन को पढ़ते हैं, you have a few passages and a few incidents that are already recorded for us
in the four Gospels. और हम चारों सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि कुछ कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स वहां पर हैं जो इस बारे में हमको वर्णन करते हैं इस बारे में। And of course, the triumphant entry, which we recognize as Palm Sunday today, is recorded there. और पाम संडे में उस विजयी परमेश्वर के उस प्रवेश को हम लोग उस बारे में हम पढ़ते हैं वहां पर। Matthew 21, you have the triumphant entry. You have in Mark 11, Luke 19, and John 12. और मती उसके 21 अध्याय में, मरकुस उसके 11 अध्याय में, लूका उसके 19 में और यूहन्ना उसके 12 अध्याय में इस विजयी प्रवेश को हम यीशु के पढ़ते हैं। So we take it that it's a very important occasion. और हम लोग उसको बहुत ही विशेष एक अवसर करके हम उसको समझते हैं। But we are not there at Palm Sunday just this moment. लेकिन हम उस पाम संडे को इस करके नहीं मनाते हैं। What's there before this incident of Palm Sunday? लेकिन उस पाम संडे, उस विजयी जो प्रवेश है यीशु का, उससे पहले का क्या है, हम उसके वजह से उस मनाते हैं। I want to present to you this morning two passages that are repeated across the four Gospels. और मैं दो पद्यांश की ओर आपका ध्यान चाहता हूं जो इस चारों सुसमाचार में हम पाते हैं। Well, actually, one incident which is across four Gospels, and the other one is across two Gospels. लेकिन एक जो कहानी जो हम पढ़ने वाले हैं वो चारों सुसमाचार में, और जो दूसरा कहानी या पद्यांश पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ दो में है। You have the passage which is described as the rich man who comes to Jesus and is asking, "What else should I do in life to have eternal life?" और वो जो पहला पद्यांश है वो पद्यांश है धनवान इंसान के, मनुष्य के बारे में बताता है जो यीशु से सवाल कर रहा है कि मैं अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करूं। And I will ask Amin to read the passage in a little bit, but it's recorded in Matthew 19. और मैं चाहूंगा कि आमिन उसको पढ़े जो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय में लिखा है। It's also written in Mark 10. वो मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10वें पद में भी लिखा है। Is there in Luke 18. वो लूका उसके 18 में भी लिखा है। But John doesn't have it. लेकिन यूहन्ना के पास उसका विवरण नहीं है। And then the second passage, और जो दूसरा पद्यांश है, it's the sons of Zebedee asking Jesus to be seated at the left and right hand of when he's in heaven. जो जबदी के पुत्र हैं वो उसके लिए, वो स्थान के लिए वो पूछ रहे हैं यीशु से कि वो क्या जब स्वर्ग में जाएंगे तो वो किस स्थान में बैठेंगे यीशु। And that's recorded in Matthew 20. और वो मती उसके 20 में लिखा है इस बारे में, And Mark 10. और मरकुस उसके 10 पद में लिखा है। Why am I trying to present to you these two passages this morning? तो मैं क्यों आपके सामने इन दोनों पद्यांश को रख रहा हूं? I have entitled my message as the sacrifice of the pursuit of possessions and positions. जो मैंने शीर्षक अपने आज प्रचार को दिया है वो है संपत्ति और पदवी का पीछा करने में त्याग। The passage of the rich young man has to do with possessions. जो धनवान व्यक्ति का जो पद्यांश है वो संपत्ति के बारे में हमको बताता है। And the second passage has to do with your positions. और जो दूसरा पद्यांश है वो हमें स्थान या पदवी के बारे में हमको बताता है। Would you please read Matthew 19:16 to 24? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 16 पद से 24 पद तक यह लिखा, एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, मैं तुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता हूं? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह है कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपने माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूं कि परमेश्वर के राज में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। And I gave Amin a hard time yesterday. मैंने आमिन को बहुत मुश्किल समय दिया कल, Because the title of the message that I chose, it took us
more than half an hour to arrive at the right Hindi translation. क्योंकि हमें आधे घंटे से ज़्यादा लगा कि हम एक शीर्षक को तय कर सकेंगे कौन सा शीर्षक हमको रखना चाहिए. So I find it amusing. He has his phone open to the WhatsApp chat, and he's trying to look at what it is. So I want to hear it. और मैंने उसको देखा कि मैंने व्हाट्सएप चैट खोली हुई है और यहाँ पर उसने शीर्षक लिखा हुआ है हिंदी में, तो वो उसको पढ़ रहा है. So what is it? संपत्ति और पदवी का पीछा करने में त्याग. Yeah, I mean, I come up with all these words, and sometimes the exact expression in Hindi will always be missing. और मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि इसका मैं बहुत सही अनुवाद निकालूं, लेकिन क्योंकि ये हिंदी में हमेशा अलग हो जाता है इंग्लिश से. And I use the word pursuit. और मैंने पीछा करना इसका शब्द चुना है. And I'm thinking of the cheetahs that are pursuing their prey in the wilderness. और मैंने उन चीता के बारे में, जो बाघ होते हैं उनके बारे में सोचने लगा जो अपने उस शिकार के पीछे भागते हैं. So you have the deer taking off, और आप देख सकते हैं कि वो हिरन भाग रहा है बहुत तेजी से, and the cheetah spots it, और वो बाघ है उसको ढूंढ लेता है. and in a fraction of a second it takes off at full speed, 70 miles an hour, and is chasing after the deer. और कुछ ही समय में वो भागने लगता है और लगभग 70 किलोमीटर की स्पीड में वो उसको पकड़ रहा है, कोशिश कर rहा है. And the deer is going zigzag trying to avoid the cheetah. और वो हिरन जो है वो ऐसे भाग रहा है और वो बचने की कोशिश कर रहा Because है. for the deer it's a matter of life and death. क्योंकि वो हिरन के लिए ये मृत्यु और एक जीवन की बात है. But for the cheetah, if the cheetah doesn't catch it, then it's not going to be able to eat and feed the family. लेकिन अगर वो बाघ उसको पकड़ नहीं पाता है तो इसके लिए अगर वो चीता उसको पकड़ नहीं पाता है तो वो उसके ये पेट की बात है कि वो अपने खुद भी नहीं खा पाएगा, अपने परिवार को भी नहीं खिला पाएगा. So it must pursue the deer. इसलिए उसको उस हिरन को पीछा करना है. And it must have it at all cost. और उसको किसी भी कीमत पे उसको पकड़ना है इसको. And you may have seen those videos on National Geographic that the chase is intense. और आपने टीवी में भी देखा होगा कि उनका जो पकड़ना है वो बहुत ही घनिष्ठ होता है, वो भाग रहे हैं एक दूसरे के पीछे. That's what the chase is all about. That's what the pursuit is all about. और यही उस पीछा करने के बारे में यीशु मसीह यहाँ बता रहा है. And remember, we are dealing with sacrifice this month. और आप याद रखें कि इस महीने हम बलिदान के विषय में बात कर रहे हैं. And therefore, the sacrifice of the pursuit, and we'll look at those two pursuits shortly. इसलिए वो त्याग जो पीछा करने के लिए जो त्याग करना होता है उसके बारे में हम विषय में बात कर. So the passage we have just read, let me make a few comments. और इसलिए जो पद्यांश आज हमने पढ़ा है उसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ. This man had kept all the commands, as he himself says, and Jesus acknowledges. और इस धनवान मनुष्य ने सारे उन आज्ञाओं का पालन किया अब तक. But you see that he is not satisfied in his heart. लेकिन आप देखें कि वो संतुष्ट नहीं है अपने हृदय में. Because if he was satisfied, there would be no reason for him to come to Jesus. क्योंकि अगर वो संतुष्ट होता तो वो यीशु मसीह के पास कभी नहीं आता. Isn't that true for all of us? और ये क्या सच नहीं है हम सब के लिए? It is that sense of dissatisfaction or realization that something is missing that brings us to Jesus. और ये वो उस बात की उस ज्ञान है कि हम संतुष्ट नहीं हैं और इसी वजह से हम यीशु के पास आना चाहते हैं. And all the wealthy people you see out there, they have no need to come to Jesus because whatever they need they have in their pockets or in their possessions. इसलिए आप कई धनवान आप मनुष्य को देखेंगे तो वो इसलिए परमेश्वर को जानना नहीं चाहता क्योंकि उनके पास जो चाहिए वो सब उनके पास है. So this man is not content. इसलिए ये मनुष्य भी संतुष्ट नहीं है. And then what happens? और फिर क्या होता है? He asked Jesus, what do I still lack? और इसलिए वो यीशु से पूछता है कि अभी भी मेरे पास क्या नहीं है, क्या कमी है मेरे पास? Because again, he knew he lacked something. क्योंकि उसको पता है कि अभी भी कुछ उसके पास कुछ कमी है. And if I can present to you this morning that it was the pursuit of eternal things. और मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि वो उस अनंत काल की बातों का पीछा ना करना वो उसकी कमी थी. It was that emptiness that was telling him that he's missing something. और ये उसका वो खालीपन था जो उसको बता रहा था कि वो कुछ उसके जीवन में कुछ कमी है. In spite of having everything, he still had nothing. सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ उसके पास फिर भी कुछ नहीं था. What do I still lack? तो अभी भी क्या कमी है मेरे अंदर?
What am I still missing? क्या क्या मेरे अंदर क्या चीज मिसिंग है? That's the question this man has, and he's asking Jesus. और यही धनवान ये व्यक्ति यीशु से पूछ रहा है Jesus tells him, और यीशु उससे इस प्रकार से बोलता है, give it all up. तू सब कुछ अपना दे दे, Go sell your possessions to the poor and follow him. तू सारी अपनी संपत्ति तू गरीबों को बांट दे। And what's the response that we see is recorded here? और इसका प्रत्युत्तर क्या होता है उस इंसान का? The man goes away. और वो धनवान इंसान उदास होकर चले जाता है वहां से। He could not bring himself to respond to what Jesus is asking him to do वो धनवान व्यक्ति इस बात का उत्तर नहीं देख पाता है जो यीशु ने उससे पूछा, because the Bible says he had a lot of things and he didn't want to get rid of them. और बाइबल कहती है कि उसके पास बहुत कुछ था, बहुत धन था और वो उन सबको त्यागना नहीं चाहता था। Maybe God tells you once in a while, don't stop chasing after possessions. शायद कभी कभी परमेश्वर आपसे इस प्रकार से बोलता है कि तू संपत्ति या धन के पीछा करना छोड़ दे। Maybe he tells you once in a while that do not go after these things. These will come and go. शायद वो कभी कभी आपसे इस प्रकार से बोलता है कि तू इसका पीछा मत कर क्योंकि ये आता है जाता है। The greatest and the wealthiest man in all of history, Solomon, writes this in Ecclesiastes 2:10-11. और हम जानते हैं कि सुलेमान इतना धनवान व्यक्ति उस समय का, वो इस प्रकार से सबोपदेशक की पुस्तक में लिखता है। All of this is like chasing in the wind. वो कहता है इन सबको ऐसा ही जैसे हवा या हवा को प्राप्त करना या हवा के पीछे भागना। Can you ever chase the wind? क्या आप हवा को पकड़ सकते हैं? Because it's here now and gone a second later. क्योंकि हवा जो है वो अभी यहाँ पर है लेकिन वो कुछ सेकंड में वहां तक चली जाएगी। How could you ever chase the wind? आप कैसे पकड़ सकते हैं उस हवा? And for the wealthiest man to remind us in God's word that chasing after possessions is like chasing after the wind. और इतने धनवान व्यक्ति का इस प्रकार से बोलना कि उस संपत्ति या धन को प्राप्त करना या उसको पकड़ना ऐसा जैसे तुम हवा को पकड़ रहे हो। Remember this. आप याद रखें इस बात को। Man's effort to chase after possession and anything outside of God's will is impossible. आप इस बात को ध्यान रखें कि परमेश्वर की इच्छा से बाहर हम जो भी चीज प्राप्त करना चाहते हैं वो हम कभी नहीं पकड़ पाएंगे। That effort will always be futile. आपका सारा प्रयास बिल्कुल निष्फल रहेगा। Are you chasing possessions today? क्या आप उस धन या संपत्ति के पीछे भाग रहे हैं आज? Are you looking for properties that you say, oh, if only I had this home? आप उस घरों या उस मकानों की ओर पीछे भाग रहे हैं कि क्या काश मेरे पास ये होता? Are you looking for a new car or something that you think that is going to satisfy you? और शायद आप ऐसे गाड़ियों के पीछे भाग रहे हैं कि आप सोचते हैं कि अगर मेरे पास ये होती तो शायद मैं बहुत संतुष्ट होता अपने जीवन में। It's going to be here today and gone tomorrow. ये चीजें यहाँ आज हैं तो कल वहां होंगी। Because that chasing is like the chasing of the wind. क्योंकि उनको पकड़ना ऐसा है जैसे आप हवा को पकड़ रहे हैं। So this rich young man is going after possessions. तो ये धनवान व्यक्ति इस संपत्ति धन के पीछे पड़ा है। But in the next passage, लेकिन अगले पद्यांश में in Mark 10, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 पद, the sons of Zebedee, James and John, come to Jesus and they have this interesting conversation. अब जबदी के पुत्र जो हैं यीशु के पास आ रहे हैं, वो इस प्रकार से एक वार्तालाप वहां पर बड़ा एक रुचिकर वार्तालाप चल रहा है। And if you can please read 17 onwards. Yeah. और 17 पद से No, 35, 10:30, Mark 10:35. मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय के 35 पद से हम पढ़ेंगे। और यहाँ लिखा है, तब जबदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने कहा, हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने ओर और दूसरे तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूं क्या तुम पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं क्या तुम ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हम से हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूं तुम पियोगे और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं उसे लोगे, पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बिठाया मेरे काम नहीं, बाएं बिठाना मेरा काम नहीं।
Go on to 45, please. 45 यह सुनकर दसों याकूब और यूहन्ना पर रियसने लगे। तो यीशु ने उनके पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझ जाते हैं वह उन पर प्रभुता करते हैं और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं। पर तुम में से ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुमसे बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि अपनी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ाने के लिए अपना प्राण दे। Admit it, you and I are interested in positions. और हम इस बात को मान ले आज कि हम पदवी चाहते हैं। It could be positions or it could be placements. ये स्थान हो सकते हैं या कोई पदवी या कोई स्तर हो सकता है। If you look at the matrimonials, which I have never had to do, you look at the matrimonials in the newspapers. और जब आप उन मैट्रिमोनियल्स को पढ़ते हैं जो अखबारों में आते हैं, What are the brides and the grooms advertised as? जो वो रिश्ते अखबारों में आते हैं, तो वो जो दूल्हा दुल्हन है वो किस प्रकार से अपने बारे में अपना वर्णन करते हैं, किस प्रकार में क्या बताते हैं वो अपने बारे में? That they have what? Such and such position, such and such placement. और वो इस प्रकार से बताते हैं कि वो उनका ये स्तर है, उनकी डिग्री है, वो इतना कर चुके हैं। As if to bait the fish, you have that hook is the position. और वो इस प्रकार से बताते हैं जैसे उसको स्थान प्राप्त करना, जैसे मतलब मछली पकड़ना है, That which fish is going to bite. कि मतलब कौन सी मछली उसको पकड़ने वाली है या कोई उसको झपट्टा मारने वाली है। What are the positions that are advertised that such and such person is a major in the army? और कई बार लिखा होता है कि वो मेजर है आर्मी में, फौज में, Or such and such is an IAS officer. या फिर वो IAS ऑफिसर है, Such and such is a judge in the high court. या वो न्यायाधीश है कोर्ट में। Well, if it's a judge, it's too late to get married. अगर वो न्यायाधीश है तो फिर तो बहुत देर हो चुकी है शादी करने के लिए। But positions are advertised. लेकिन जो आपके स्तर है या आपका जो पदवी है, उस बात का बड़ा प्रचार होता है अखबारों में। And if people are introduced to each other in different occasions and different settings, what is the second or third thing that you end up talking about? और अगर आप उस कैन यू प्लीज रिपीट? If you go to, let's say, a party आप एक पार्टी में जाते हैं and you meet new people, और आप नए लोगों से मिलते हैं, what is the second or third thing that you talk about? तो दूसरी या तीसरी बातें क्या होती है जिसके बारे में आप बात करते हैं लोगों से? What is it that you do? आप क्या करते हैं? And you say, oh, I am the general manager of this and this company, और आप बोलते हैं कि मैं जनरल मैनेजर हूँ इस कंपनी में। right? Nobody ever says, oh, I'm just a taxi driver. कोई ये नहीं बोलता कि मैं एक ड्राइवर हूँ। You know, so that's like a lower standard. और क्योंकि वो बहुत एक नीचे स्तर की बात है, बहुत नीची बात है। But the mindset is you have to have a position in order to make it in life. लेकिन हमारी सोच ये है कि हमें कुछ ना कुछ पदवी हासिल करना जरूरी है, तभी हम कुछ बन पाएंगे जीवन में। And our message this morning is, and when we are talking about sacrifice, that you sacrifice the chasing of this position, chasing of the pursuit of position in order to bring glory to God's name. और आज हम जिस विषय में बात कर रहे हैं वो ये है कि हमें उन त्याग करना है, उन प्राप्ति का, जो हम जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं उसका त्याग हमें करना है, ताकि हम परमेश्वर को महिमा दे सकें। Not just now, but early on in Jesus' time, the sons of Zebedee are asking Jesus that, Lord, please do whatever we ask you. और जब्दी के पुत्र इस प्रकार से बोल रहे हैं कि परमेश्वर यीशु तू हमारे लिए जो भी हम मांग रहे हैं तो हमारे लिए कर। As if coming to Jesus because they have given up everything, that they can ask Jesus to do whatever they want. और वो इस प्रकार से बोल रहे हैं जैसे उन्होंने परमेश्वर के लिए पत्नी क्या क्या किया हो, कि ताकि जो भी वो मांगे वो यीशु उनके लिए कर दे। I thought it was a Hindi movie thing that the son goes to the mother and say कि माँ ना करना। और ये हिंदी मूवी की तरह लग रहा था कि वो बोल रहा है कि माँ तो मना मत करना इस बात के लिए। Jesus, do not refuse us, do whatever we ask you. और वो बोल रहे हैं कि यीशु तो हमको मना मत करना, चाहे हम कुछ भी मांग ले तुझसे आज। And let me tell you, it may sound amusing, but you and I do that all the time.
आपके लिए बहुत मनोरंजन वाली बात हो सकती है, लेकिन आप और मैं ये हमेशा ऐसे ही करते हैं यीशु के साथ। We go to Jesus, and just because of the fact that we are believers and God's children, God's sons and daughters, we say, Lord, you have to give it to us. और हम यीशु के बच्चे होने के नाते हम यीशु से बोलते हैं, यीशु तुझे ये मेरे लिए करना ही पड़ेगा। And that belief doesn't originate now, it's been there for 2000 years. और ये सोच अभी से नहीं है, ये 2000 साल पुरानी ये सोच है हमारी। Sons of Zebedee, James and John are asking, Lord, we want to be seated at your left and right. और यूहन्ना और याकूब यीशु से बोल रहे हैं कि यीशु हम तेरे दाहिने और बाएं और बैठना चाहते हैं। Why would anyone ask those positions? क्यों कोई ऐसी पदवी या स्थान को मांगेगा? The right hand man जो and the left hand man. जो दाहिने ओर होता है इंसान और जो बाएं ओर होता है। Have you seen men seated in positions of authority and of power? आपने उन लोगों को देखा है जो अधिकार में बैठते हैं? You know what they do? आपको पता है वो क्या करते हैं? They do not do anything directly. वो सीधा सीधा कुछ नहीं करते, They go through the people sitting on their left and right. वो अपने दाएं और बाएं ओर जो लोग उनके जो होते हैं उनके द्वारा काम करवाते हैं। If you are a mafia guy अगर आप एक माफिया गुंडे कुछ हैं and if you want somebody killed, और आप चाहते हैं किसी को मारना, you'll tell your right hand man. आप अपने And जो the guy दाहिने will और go and do आपके it. जो आपके दाहिने ओर बैठा है, आप उनसे अपने सेवक से बोलेंगे जा उसको मार के आ। You want something else done, you'll tell the guy on your left, go, and he'll go and do it. और आपको कुछ और करवाना है, आप आपके जो बाएं ओर बैठा है आप उससे बोलोगे जा उसको करके So आ। the people sitting on the left and right become the executors of the power of the person sitting in that तो position. जो आपके दाहिने और बाएं ओर बैठा है वो आपके वो उस माध्यम बन जाता है जिसके द्वारा आप गलत गलत काम या अच्छे काम जो भी करते हैं। So that position is as important as the person almost of the main person who's sitting in the middle. तो जो आपके दाएं और बाएं ओर बैठे हैं उनकी पदवी वही उसी बराबर में हो जाती है जो अधिकार में इंसान बैठा है। And that's what these two want. और यही याकूब और यूहन्ना यीशु से मांग रहे हैं यहाँ पर। My aunt didn't know this, but she gives me a verse at a family meeting 2 days back. और जो मेरी चाची जी हैं वो जानती नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ मुझे परमेश्वर के वचन से कुछ बात बांटी थी। Bua ji. बुआ जी, राइट। She gives me this verse, Psalm 37:4. और उन्होंने मुझे भजन संहिता उसके 37 अध्याय के 4 पद के बारे में मुझे बताया। And it says, delight yourself in the Lord and he will give you the desires of your heart. और परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान तो वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। ये पद मेरी बुआ ने मुझे बताया था। And she gave a verse to each one of us in the family, the different verses, but she was asking us to say what we thought about it. और उन्होंने ये अलग अलग पद सबको दिए, लेकिन उन्होंने मुझसे इस प्रकार से पूछा कि मैं क्या सोचता हूँ इस विषय में। And she didn't know that I was going to be speaking about it today. और वो ये बात नहीं जानती थी कि मैं इसी विषय में आज प्रचार करने वाला हूँ। And the understanding of this verse is this. और इस पद की जो समझ है वो इस प्रकार से है। And it's important for you and I to remember this. और ये आपके लिए मेरे लिए बहुत जरूरी कि हम समझें इस बात को। That और if याद you रखें want God to give you the desires of your heart, कि अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके मनोरथों को पूरा करे, your heart had better be filled with all the things that God desires. तो इसके लिए जरूरी है कि आपका जो हृदय वो उन चीजों से भर जाए जिसकी इच्छाएं परमेश्वर को है। Did you get that? आप समझे इस बात को? If your heart is already filled with things that please God, God is going to give them to you. कि अगर आपका हृदय आपका दिल उन बातों से भरा है जो परमेश्वर की इच्छा भी है, तो परमेश्वर उसको आपके मनोरथों को जरूर पूरा करेगा। It does not mean that I can fill my heart with whatever I want, and because I'm a son of God, God is going to give it to me. इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं अपना हृदय उन चीजों से भर लूं जो मेरी इच्छाएं हैं और मैं ऐसा बोलूं कि क्योंकि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं तो परमेश्वर मेरे लिए करेगा ये। So positions are given by God. तो जो स्तर है या जो पदवी है वो परमेश्वर के द्वारा हमको मिलती है। Not now, but throughout eternity and in eternity. पूरे अनंत काल तक और अनंत काल में भी ये बात सच है। But here's the thing about positions. लेकिन पदवी के बारे में एक सच्चाई ये है, Just like the passage describes us about the other disciples, और ये पद्यांश हमको बाकी चेलों के बारे में भी बताता है। if one person has a position, the other people feel how? कि अगर एक इंसान को पदवी मिल जाती तो बाकी लोग कैसा सोचते हैं फिर? They resent it.
तो वो बुरा वो अपने आप को बहुत निराश हो जाते हैं, They don't like it. उनको पसंद नहीं आता ये बात। They say, "Oh, I wish I was in that position. बाकी लोग सोचते हैं कि काश मैं भी उस पदवी में होता, If only I was an IAS officer, I could have done all those things. और हम सोचते हैं कि शायद अगर मैं सिर्फ एक IAS ऑफिसर होता तभी मैं वो कर पाता। If only I was somebody in the army, I could have done all those things and I've had a koti in the northern sectors of Chandigarh. और आप सोचते हैं कि अगर मैं फौज में शायद होता तो शायद तभी मैं उन सेक्टर में जो बहुत अच्छे वाले सेक्टर है वहां पर चंडीगढ़ मेरा घर होता। But Jesus is reminding his disciples all over again in the passage लेकिन यीशु एक बार फिर से चेलों को ये बात समझा रहा है आज that any position is not for us to decide, but it is for God alone to give to us. कि कोई भी स्थान या पदवी हमारे विषय में नहीं है, या हम उसको निर्णय नहीं लेते हैं, लेकिन ये परमेश्वर उसको हमको देता है। So if God is going to give you a position according to his will, क्योंकि परमेश्वर आपको वो पदवी देगा अपनी इच्छा के अनुसार। what good is our chasing of a position? तो अगर ऐसा होगा तो हमारा उसके पीछा करने से क्या फायदा? Is it going to bring that sense of satisfaction in our lives that we have achieved something? क्या हमको उसके द्वारा संतुष्टि मिलेगी? And I want to suggest to you the answer is no. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका उत्तर ना है। Think about it for a moment. और आप इस विषय में कुछ समय सोचें। What good are positions in life? और जो स्थान है, जो पदवी है, वो उससे क्या अच्छा हो सकता है? Jesus reminds us in the same passage that the rulers who were set in place over the Jews and the Gentiles at that time, how they behaved. और यीशु ने कुछ पद्यांश पहले वो इस प्रकार से बताया कि जो अधिकारी थे उस समय में वो किस प्रकार से यहूदी और अन्य जातियों से बर्ताव करते थे। It says they lorded it over them. और उनको वो बोझ से भर देते थे। And the only expression I have in my mind about lording over something is cracking a whip and say, okay, you got to do this because I have said so. और शायद वो उनको इसे मार के जो एक विचार जो मुझे आ रहा है वो ऐसा है कि वो शायद उनको मार के बोलते हैं कि ऐसा काम कर चल। If you don't do it, you're out or you're killed or you're done. अगर तू उस काम को पूरा नहीं करेगा तो हम तुझे मार देंगे। Lord it over. तो वो उनको हक जमाते थे। That because I'm in such and such position, everybody else has to do this and this for me. तो वो इस प्रकार से बोलते थे कि अगर तू नहीं करेगा तो मैं ऐसा तुम्हारे साथ कर दूंगा। But Jesus reminds his disciples that even the Son of Man came to be served? No. The Son of Man came to serve and not to be served. इसलिए यीशु उनको फिर से इस बात को याद दिला रहा है कि जो मनुष्य का पुत्र है वो सेवा लेने नहीं लेकिन सेवा करने आया। And you and I as his disciples, और आप और मैं जो यीशु के चेले हैं, it becomes imperative that we do the same. और ये हमारे लिए एक आज्ञा है कि हम भी इस चीज को करें। Our positions are not placements for us to exercise authority over people, और हमारी पदवियां एक ऐसा स्थान नहीं है कि हम अपने अधिकार को दूसरों में जमाएं, but it is a place for us that we can go out and actually help others. लेकिन ऐसा स्थान है जिसके द्वारा हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। So in the two passages we read this morning, जो आज दो पद्यांश हमने पढ़े, the first one was to do with possessions. और जो पहला था वो संपत्ति के विषय में था, धन के विषय में था। This man is trying to get to eternal life and he wants to know what to do about it. और वो अनंत जीवन के बारे में जानना चाहता है। वो यीशु से पूछता है कि वो क्या कर सकता है अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए। And the other passage is talking about eternal life and the positions that these James and John want to have in it. और दूसरा जो पद्यांश है वो स्तर के बारे में, पदवी के बारे में बताता है जो याकूब और यूहन्ना चाहते हैं। Therefore the title again, the sacrifice of the pursuits of possessions and positions. और संपत्ति और धन प्राप्त करने का त्याग। Our pursuit of earthly riches keep us from the pursuit of eternal riches. और जितना ज्यादा हम सांसारिक वस्तुओं के पीछे भागते हैं वो हमको उस अनंत काल की चीजों से हमको दूर करता है। As we conclude, think about this. आप सोचें इस बारे में। Our chasing of material things, और जितनी भी ये वस्तुएं हैं इनके जितने हम पीछे भागते हैं, our chasing of
irrelevant positions और ऐसे पदवी के पीछे भागना जो सही नहीं है, take our focus away from eternal things. वो हमारा ध्यान उन अनंत काल की बातों से दूर कर देते हैं। And the Bible reminds us that if we are seeking God's kingdom, और बाइबल हमको इस बात को याद दिलाती है कि अगर हम परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे तो, that means looking for eternal things. और इसका अर्थ है कि हम अनंत काल की बातों की ओर ध्यान लगा रहे हैं, All these things are going to be what? Added on to you. कि बाकी जो तुम्हारी इच्छाएं, जो बाकी वस्तुएं, वो तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगी। If your heart is filled with all the things that God's heart is filled with, और अगर आपका हृदय उन बातों से भरा है जिन बातों से परमेश्वर का हृदय भी भरा है, you're going to get all those things. आपको वो चीजें मिल जाएंगी। You will not have to worry about anything. आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। The only worthy pursuit in our life today और सिर्फ एक चीज जो योग्य है इस चीज के, is pursuing after God's kingdom and all the eternal things. कि हम परमेश्वर के राज्य की खोज करें और जो चीजें अनंत काल की हैं उनके पीछे हम भागें, Give up. बाकी सब छोड़ दें। Give up all the things that have nothing to do with eternal life. बाकी वो सब छोड़ दें, त्याग कर दें जिनका लेना देना अनंत काल की बातों से नहीं है। If Jesus was able to give his life for you and I, अगर यीशु अपना जीवन आपके लिए मेरे लिए दे सकता है surely you and I can give up what's irrelevant in this life. तो हम भी उन चीजों को हम त्याग कर सकते हैं जो सही नहीं है, जो हम अनंत काल की बातों की ओर नहीं ले जा रही हैं। And as we do that, may God be our strength. और जब हम ऐसा करें तो परमेश्वर हमारा सामर्थ्य बने।